नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरें में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। नई थी सुर्खियाँ, आप खबरों की तफसील पेश है। दिल्ली की एक मुकामी अदालत ने जुमे को मुबैना एक्साइज पॉलिसी घपले से जुड़े बदउनवानी के मुकदमे में साबिक़ वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और साबिक़ नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया को इल्ज़ामात से बरी करार दे दिया। राउस एवेन्यू अदालत के खुसूसी जज जितेंद्र सिंह ने इस मुकदमे में साबिक़ वज़ीर आला केजरीवाल, साबिक़ नायब वज़ीर आला सिसोदिया समेत तमाम 23 मुलजिमान को बरी कर दिया। अदालत ने जिन दीगर अहम शख्सियात को इल्ज़ाम से आज़ाद किया है उनमें भारत राष्ट्रीय समिति BRS की रहनुमा के कविता, विजय नायर, समीर महिंद्रू और दीगर शामिल हैं। ये मुकदमा 2021-22 के दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से मुताल्लिक़ था, जिसे बाद में बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ामात के बाद वापस ले लिया गया था। मरकज़ी तहक़ीक़ाती ब्यूरो CBI का इल्ज़ाम था कि इस पॉलिसी के ज़रिए निजी इदारों को नाजायज़ फ़ायदा पहुँचाया गया है। सभी आरोपियों को राजधानी कोर्ट ने बरी कर दिया है। दिल्ली आबकारी मामले बरी नहीं, डिस्चार्ज कर दिया है। सर, इस फैसले पर आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ लीगल ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने दी सुनवाई के दौरान। देखिए, बहुत उन्होंने सारा तो नहीं पढ़ा जजमेंट, थोड़ा जजमेंट पढ़ा है और उन्होंने यही कहा कि प्रामा फेसाई पूरी फाइल में, चार्जशीट में कहीं पर कुछ ऐसा नहीं मिला कि जिससे हम ये कह सकें कि प्रामा फेसाई देयर इज एविडेंस अगेंस्ट एनी ऑफ द अक्यूज्ड हु हैज कमिटेड एनी क्रिमिनल ऑफेंस, देयरफॉर ही केम टू द कंक्लूजन दैट दे वर डिस्चार्ज। अरे उसको बुला, अरे आगे वाले को। हाँ, तो the court also said that the interest of the person holding constitutional post should be protected and cannot be. Yes, उन्होंने कहा कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है और वो उसके डिस्चार्ज में अगर काम करता है तो उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। और जो भी इनकी फाइल थी सारी LG के पास अप्रूवल के लिए गई। LG भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, सो देयरफॉर आप डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते हैं और उनको अगर प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो काम ही नहीं करेंगे। See, firstly, I would go on law. On law, the general observation of court is that the rule of law is supreme. The criminal justice system or the criminal prosecutions are there to convict real culprit, and it is not an instrument to make illegal charges against anybody. That's the general perception, just the general law. On specific, after going through all the evidence and statements produced by the CBI against all the accused person, court has said that it has gone meticulously over all the statements, all the evidence which is produced by CBI, and not a shred of evidence, not a shred of allegation can be said to cross the threshold of the charge, and that is why the court has discharged them, saying that there cannot be any allegation which can be held to be true in this matter. Court has also said that the whole formulation of excise policy which was done by the government was done through institutional safeguards. It has gone to all the stakeholders, including the Honorable LG, and there cannot be any doubt on the mannerism and the way the policy has been framed. When the policy was formulated, thereafter the prices were increased or fixed by the cabinet committee. Court also made observation that the price fixation was the deliberation of the GOM and approval of the cabinet committee and LG. On what? Because this was the main allegation against Mr. Manish Sisodia. So we had submitted before the court that if you see the excise policy, the revenues of the state would have increased. The liquor has become cheaper because there were discounts which were offering. People from other states are coming and buying. So if the customers are happy and if the government is earning more revenue, where is the allegation of any wrongdoing in the excise policy? The court has vindicated that issue and has gone threadbare to all the evidence, all the data, all the figures which are presented by CBI, and has rejected them, saying that not even a prima facie case is made out against any of the accused persons. During one of the argument, some senior advocate also said that the previous liquor sellers lobby was not happy with the present policy. That's why they wrote to the ministry and some other institutions. So it was the case of CBI that there were three legal opinions which were taken during the time when the excise policy was framed, and these opinions were not put in the cabinet note, and there was some imagined cabinet note which was there, which was destroyed by Sri Manish Sisodia and the other accused persons. The court has in fact gone to the details of it and has in fact gone into the three opinions himself, and it said that even these three opinions
does not would not prove any CBI case, and in fact these opinions were in the favor of change in the excise policy. So this is what the court has said. So how do you see the next course? What CBI is going to do in coming days? So that is for the CBI to decide. After this thumping order, I think they have to go and reorganize themselves, look at the order, and according to me, it is a very well written order which has dealt with everything. So that is for CBI to see whether they want to challenge it. They have a right to challenge this in the High Court. They can challenge that also. दिल्ली की शराब पॉलिसी से मुताल्लिक मुकदमे में बरी होने के बाद साबिक वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जज्बाती नजर आए। राउस एवेन्यू अदालत के फैसले के फ़ौरन बाद इन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनके खिलाफ पूरा मुकदमा फर्जी था और उन्हें जानबूझकर एक झूठे केस में फंसाया गया। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि आज़ाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सियासी साजिश रची गई ताकि आम आदमी पार्टी को ख़त्म किया जा सके। इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह पर संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए कहा कि उनकी छवि ख़राब करने के लिए मुसलसल कोशिश की गई और टेलीविज़न चैनलों पर उन्हें बदउनवान साबित करने की मुहिम चलाई गई। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिलके आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, हिलाओ मत भाई। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग के केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आज एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा कि तमिलनाडु असम्बली इंतखाबात में एक ही मरहले में कराने की तजवीज़ पर तमाम पहलुओं पर गौर किया जा रहा है और इस बारे में हतमी फैसला इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के वक्त सामने आएगा। इन्होंने रियासत में इंतखाबी फहरिस्त की हालिया खुसूसी गहरी नजरसानी, इन्हें SIR को पूरे मुल्क के लिए एक मॉडल करार देते हुए दावा किया कि तमिलनाडु में आने वाले इंतखाबात में बिहार से भी बेहतर मिसाल कायम करेगा।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि कानून के तहत 100% वोटिंग लाजमी नहीं, ताहम तमिलनाडु में वोटिंग की शरह हमेशा हौसला अफजा और सियासी शऊर की अक्कास रही है। इन्होंने कहा कि कमीशन आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है और तमाम तैयारियाँ इसी मकसद के तहत जारी मुकम्मल की जा रही हैं। The special intensive revision which happened in Tamil Nadu has been a model for the country and a great success. Before every election, as per law, a revision has to be carried out by the Election Commission. Section 21 RP Act 1950. The basic objective of any revision is to ensure cleaner rolls, people who are dead or shifted or have acquired more than 2 places they have become electors, they should be weeded out, and people who have joined newly in that constituency, they have started staying there, who are ordinary residents, their names should be freshly included. So this exercise was wonderfully done in Tamil Nadu. As far as final rolls are concerned, they have been published on 23rd February. But as per law, if any person who is eligible and an Indian citizen, he wants to add his name even now, it is possible by filling up Form 6 plus declaration, mapping or necessary documents. If any person wants to delete his name or complain that somebody else's name should be deleted because he or she has shifted or died or has become ineligible, it can be done by using Form 7. If any elector finds that he should move from one polling station to another or one constituency to another, he can do that by using Form 8. These 3 forms, 6, 7 and 8, can be submitted till 10 days before the nomination. Why 10 days? Because once these forms are submitted, they are displayed on the notice board of electoral registration officers. So if anybody wants to complain, they can do it. And the final decision can be taken on the last date of nomination. The electoral rolls, as on the last day of nomination, are shared with all the candidates, election agents, presiding officers, and the elections take place on that roll. So there is still time. About the correctness of SIR in Tamil Nadu, I congratulate the electoral machinery and all the electors of Tamil Nadu that out of 5,67 lakh electors, only 216 appeals have been filed till date with the collectors. So that shows the professionalism with special intensive revision was carried out in Tamil Nadu. With regards to 17C, as per law, नई दिल्ली में एक बार फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में तुलबा और पुलिस के दरमियान कशीदगी देखने में आई, जब JNU तुलबा यूनियन की क़यादत में निकाला जाने वाला लॉन्ग मार्च तमाम तसादुम में बदल गया। अपनी मांगों के हक़ में निकलने वाले तुलबा को इस वक्त रोक दिया गया जब वो मरकज़ी दरवाजे से बाहर निकलकर वज़ारत तालीम की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान दोनों जानिब से धक्का मुक्की और नोकझोंक हुई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आईनी शाहिदीन के मुताबिक पुलिस की कार्रवाई में कई तुलबा ज़ख्मी हुए, जिनमें तालिबात भी शामिल हैं। तुलबा का इल्ज़ाम है कि उनका मार्च पुरअमन था, लेकिन पुलिस ने ताकत का बेजा इस्तेमाल किया है। बाज़ तुलबा को हिरासत में लेकर नामालूम मुकामात पर मुंतकिल किए जाने का दावा भी किया गया है। तुलबा का कहना है कि कुछ ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद भी फराहम नहीं की गई। तीनों मुसल्लह अफवाज की सुप्रीम कमांडर और सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने जुम्मे की सुबह जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन से देसी साख्ता हल्के जंगी हेलीकॉप्टर प्रचंड में परवाज़ करके तारीख रकम की। प्रचंड मुल्क में तैयार किया गया हल्का जंगी हेलीकॉप्टर है। इससे कबल सदर मुर्मू लड़ाका तैयारों, राइफल और सखूनी में भी परवाज़ कर चुकी हैं। इस मौके पर इन्होंने हेलीकॉप्टर की कॉकपिट से सलामी भी दी, जब सदर का हेलीकॉप्टर जैसलमेर के करीब
सोनार किले के ऊपर से गुजरा तो इन्होंने कौम के नाम पैगाम देते हुए कहा, आज मैं प्रचंड हेलीकॉप्टर में प्रवास कर रही हूँ। ये हेलीकॉप्टर आत्मनिर्भरता की मजबूत अलामत है। मैं इस वक्त जैसलमेर के मशहूर किले के ऊपर से गुजर रही हूँ। मैं अपने बहादुर फौजियों को फ़ख्र के साथ सलाम और तशक्कुर पेश करती हूँ। सदर ने सुबह 10:15 पर जैसलमेर एयरबेस से प्रचंड में परवाजी भरी। इस परवाज़ की ख़ास बात यह थी कि वो कॉकपिट में पायलट के साथ शरीक पायलट के तौर पर भी मौजूद थी। ऐसा करने वाली वो मुल्क की पहली सदर बन गई हैं। वाज़ेह है कि हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया आज शाम पाकिस्तान से मुत्तसिल सरहद के करीब पोखरण फायरिंग रेंज में वायु शक्ति मशक़ का एहतमाम कर रही है, जिसमें सदर मुर्मू भी शरीक होंगी। कांग्रेस ने कहा कि NCERT की किताबों की निसाब में तब्दीली पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी का गुस्सा मसनूई है, और अगर इनका गुस्सा मसनूई नहीं है तो उन्हें निसाब में तब्दीली से मुताल्लिक़ पूरे मामले की तहक़ीक़ात करानी चाहिए। जुमे को एक बयान में कांग्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने इल्ज़ाम लगाया कि मोदी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की किताबों के मामले पर मसनूई गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। वो निसाब में तब्दीली पर महज अपनी नाराज़गी का दिखावा कर रहे हैं। इन्होंने मोदी की नाराज़गी को सूरत-ए-हाल पर काबू करने की कोशिश करार देते हुए कहा कि वाज़ेह तौर पर एक डैमेज कंट्रोल कोशिश के तहत ये पैगाम दिया जा रहा है कि वो NCERT की निसाबी किताबों में अदलिया के तनक़ीदी हवालों से इंतहाई नाखुश हैं। पिछली दहाई के दौरान इन्होंने ऐसे माहिरीन तालीम और छोला छाप एकेडमीज़ की क़यादत की है जिन्होंने अपने नज़रियाती वायरस से निसाबी किताबों को मुतासिर करके संगीन नुकसान पहुँचाया है। ये कोई हादिसाती चौक नहीं बल्कि एक मनसूबाबंद नज़रियाती दरअंदाजी की मुहिम का एक हिस्सा है। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने वज़ीर-ए-आज़म पर हमला करते हुए कहा कि निसाब का फैसला नागपुर में RSS हेडक्वार्टर में होता है, जिससे मोदी खुद वाबस्ता हैं। इन्होंने कहा कि मिस्टर मोदी खुद नागपुर कम्युनल इकोसिस्टम फॉर रीराइटिंग टेक्स्ट बुक हकीकी NCERT कोस्ट और तश्कील देते रहे हैं, जिससे जयराम रमेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को मुश्तिल करने वाली निसाबी किताबों से खुद को दूर करने की इनकी कोशिश महज एक दिखावा है। अब सुप्रीम कोर्ट के लिए अगला मंतिकी कदम ये होना चाहिए कि वो इस बात की तफसीली तहक़ीक़ात कराए कि निसाबी कुतुब को कैसे दोबारा लिखा गया और वो किस तरह पोलराइजेशन और सियासी हिसाब किताब चुकाने के औजार में तब्दील किए गए। कोलकाता में जुमेरात को ज़लज़ले के तेज़ झटके महसूस किए गए, जिसके बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों में बेचैनी फैल गई। रिक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ बांग्लादेश में था, ताहम इसके असरात को लगातार अतराफ़ के इलाकों में भी महसूस किए गए। झटके चंद सेकंड तक जारी रहे, लेकिन इस दौरान इमारतों के हिलने और फर्नीचर के लरज़ने की इत्तलात मौसूल हुई। एहतियाती तौर पर शहरी बड़ी तादाद में अपने घरों और दफातर से बाहर निकल आए। मुतादिद दफ्तरों से मुलाजिमीन ने इमारतें खाली करके खुले मुकामात पर पनाह ली। ताल किसी बड़े जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ ज़मीन से 10 किलोमीटर गहराई में था और ये कोलकाता से 100 किलोमीटर शुमाल में वाक़े है। अदाकारा व गुलकारा मंजरी फडनीस, जिन्होंने शोबिस इंडस्ट्री में एक सादा आगाज़ कामयाबी की बुलंदियों तक सफ़र तय किया है, इन्होंने फ़िल्म जाने तू या जाने ना से खासी शोहरत हासिल की। वो फिल्मी दुनिया में मुख्तलिफ असनाफ़ में काम करने के हवाले से ANI भी जानी जाती है। एक हालिया गुफ्तगू में बात करते हुए मंजरी फिडनीस ने वैलेंटाइन डे के मौके पर रिलीज़ होने वाले अपने गाने रोको ना के बारे में भी गुफ्तगू की। इन्होंने कहा कि ये गाना इन तमाम अनमोल नाकाबिल फरामोश लम्हात के नाम से जो मोहब्बत और ख़ूबसूरत यादों से जुड़े होते हैं। मैं बहुत खुश हूँ ये सुन के कि लोग सुन रहे हैं रोको ना एंड उनको पसंद भी आ रहा है। बहुत ही सिंपल सा कोलैबोरेशन था जो मैंने अपने दोस्तों के साथ किया। तो अब्बास सैयद जो हैं वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं बहुत सालों से, एंड वो खुद एक्टर भी हैं एंड ही कंपोजेस ऑल्सो म्यूज़िक। एंड तो उनका ये थॉट था कि व्हाट इफ़ अ फ्यू एक्टर्स कैन कम टुगेदर एंड डू अ नाइस सॉन्ग एंड एवरीथिंग। तो उन्होंने ये गाना कंपोज किया। हमारे एक फ्रेंड ने उसका लिरिक्स दिया, रोहित तिवारी, एंड द म्यूज़िक इज़ प्रोड्यूस्ड बाय आरिफ सैयद, हिज ब्रदर। एंड सो या आई मीन मुझे बहुत ही प्यारा लगा गाना। जब मैंने पहली बार सुना था तो इट वाज वेरी सिंपल, अ नाइस लव सॉन्ग, एंड it talks about the moments in our life that we don't want them to stop. कुछ वो moments होते हैं लाइफ में जो हम चाहते हैं कि वो रुक जाएं, वहीं रुक जाएं. So the thought was about those moments. तो मुझे बड़ा प्यारा लगा and उसका म्यूजिक भी बहुत, I found it very soothing. So I thought I definitely wanted to be a part of it. Well, अभी तो नहीं है
दैट वे, बट मेरे दिल में बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक मैं ये मानती हूँ ये गाना जो है रोको ना, ये एक लव सॉन्ग की तरह लिखा ज़रूर गया है, लेकिन मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि जो सिंगल्स हैं, लाइक जैसे मैं सिंगल हूँ, राइट, सो I mean, every Valentine's Day, all of us feel very pissed off. We are so angry seeing couples all getting all coochie-cooing and all those. So, I mean, I don't think it's fair. But मैं ये मानती हूँ कि self-love is one of the most important forms of love. And ये जो गाना है, though it's written as a love song, but अगर आप इसके lyrics सुनेंगे, आपको ये नहीं लगेगा, I mean, even a single person can hear the song and imagine those beautiful moments from their life, चाहे वो अकेले हो, maybe like for example like me, I love going on solo vacations. नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।